Good morning, students. Today we will start the second kingdom of chapter number second. That is, first kingdom was Manira and second one is the Protista. So coming to the characteristics of Protista that we have done according to Whittaker classification. Protista are eukaryotes. They are different from Manira, that their cell type is eukaryotic. Cell wall is present but not in all protists, and nuclear membrane is also present, and mode of nutrition is autotrophic and heterotrophic. So the main difference is the eukaryotics. What is the main difference between prokaryotic and eukaryotic? The eukaryotic have a well defined nucleus, but in case of prokaryotes, the nucleus is not, DNA is there but nucleus is not well defined. And the second major difference is all cell contain the cell membrane bound organelles, but in case of prokaryotes this is not there. Eukaryotes can be single celled and the multicells also. So in prokaryotes, this is the eukaryotes but single celled, and but the boundaries of this kingdom is not clear, that they are also photosynthetic in nature. So under Protista or the kingdom Protista, what are the members? Number 1 is chrysophytes, number 2 dinoflagellates, number 3 euglenoids, some slime molds, number 4 protozoans. So these are under the kingdom Protista. Because they are eukaryotes, therefore the cell body contain a well defined nucleus. ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स है उनकी स्पेशलिटी क्या है, क्योंकि उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के अंदर होएगा. एंड द अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, और जो ऑर्गेनल्स होंगे दे विल ऑल्सो inside a membrane, you can say they are the membrane bound organelles. So some have flagella. Flagella मैंने आपको दिखाया था, that is the meant for the movement. और cilia, cilia क्या होते हैं, छोटी छोटी hair like projections होती हैं that may be present on the full of body. So this is the cilia. cilia भी हो सकते हैं, flagella भी हो सकते हैं. तो mode of reproduction asexual and sexual, प्रोटिस्टा में दोनों हो सकते हैं. There may be a cell fusion and zygote formation also in the case of sexual reproduction. So coming to the chrysophytes, number 1 chrysophytes हैं, they are also known as the diatoms and golden algae. golden algae को हम desmids बोलते हैं. They are present in fresh water as well as in the marine environment. मोस्टली जो क्राइसोफाइट्स हैं वो कहाँ होते हैं, पानी में होते हैं. दे आर माइक्रोस्कोपिक, float passively in water. They are also known as the phytoplankton or plankton, and most of them are photosynthetic. ठीक है. In diatoms, the cell wall form 2 thin overlapping shells, and the wall is embedded with silica, and thus the wall are indestructible, and diatoms are left behind large amount of cell wall deposit in the habitat, and this accumulate over the million of years and referred to as the diatomous earth. जो डायटमस अर्थ है उनको हम जो बनती है विद द हेल्प ऑफ डायटम्स, इनको हम यूज़ करते हैं बिकॉज दिस इज़ ग्रिटी इन नेचर, दैट इज यूज इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, जैसे सिरप की फिल्ट्रेशन के लिए भी यूज़ होते हैं. तो दे आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द मेन प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन. तो डायटमस अर्थ की एक मैं और स्पेशलिटी बता दूँ जो कि डायटम से बनती है. इनको हम एग्रीकल्चर में एज अ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं, और दिस इज़ ऑर्गेनिक इन नेचर. और डाइनोफ्लैजिलेट्स सेकंड कैटेगरी है. डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं, ये जैसे ये जो फर्स्ट हमने किया कौन सा किया, क्राइसोफाइट्स है, ये फ्रेश वाटर में है ज़्यादा होते हैं. तो ये मरीन वाटर में भी होते हैं और मोस्टली मरीन वाटर में होते हैं. फोटोसिंथेटिक होते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड और डिफरेंट कलर्स के होते हैं. पिगमेंट्स होती हैं इनके, इसलिए डिफरेंट कलर्स के होते हैं. तो सेल वॉल जो होती है उसमें सेलुलोज प्लेट जो होती है ऑन द आउटर सरफेस, एंड मोस्ट ऑफ देम हैव फ्लैजिला. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसवर्सली.
सो जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं उनको हम बोलते हैं गोनियोलैक्स, और अंडरगोज रैपिड मल्टीप्लिकेशन। इनकी जो डाइनोफ्लैजिलेट्स है बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, और इतना रैपिडली करते हैं कि इन द सी, जो मरीन सी में ये प्रेजेंट होते हैं, दैट अपीयर एज रेड, तो इनको हम रेड टाइड्स भी बोलते हैं। टॉक्सिन रिलीज्ड बाय सच लार्ज numbers may even kill other marine animals such as the fishes. So dinoflagellates secrete some sort of toxins that is not good for the aquatic life. And third one is the euglenoids. यूग्लिना इसका जो मेन एग्जांपल है वो यूग्लिना है। यूग्लिना आपने देखा होगा, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द स्टेगनेंट वाटर। जो खड़ा हुआ पानी है उसके अंदर ही यूग्लिनाइड्स होते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड अ पेलिकल। ठीक है, यहाँ पे जो सेल वॉल है उसमें प्रोटीन रिच लेयर होएगी, पेलिकल उसको हम बोलते हैं। बॉडी इसकी फ्लेक्सिबल होएगी। अगेन फ्लैजिला यहाँ पे होएंगे, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है। एंड दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिकेम लाइक हेटेरोट्रॉप्स। मतलब जब अगर तो रोशनी है तो ये अपना खुद का खाना बनाएंगे, अगर जिस जगह पे ये प्रेजेंट है वहाँ पे रोशनी नहीं है तो अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये चेंज कर लेते हैं, तो देन दे बिकम द हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, बाय प्रेडेटिंग ऑन द अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को खाएंगे। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनोइड्स इज आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट्स। सो दिस इज यूग्लिना, आई विल शो यू यूग्लिना। दिस इज ए इज द यूग्लिना, यू कैन सी द टू फ्लैजिला, एंड देन इज द यूग्लिनोइड्स के बाद है स्लाइम मोल्ड्स। मोल्ड्स जो होते हैं, स्लाइम मीन समथिंग विस्कस आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट इसको हम बोलते हैं। द बॉडी मूव अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, डेड और डिके मटेरियल के ऊपर ये जो है उनका ऑर्गेनिक मैटर है उसको एनगल्फ करते हैं। अंडर सूटेबल कंडीशन दे फॉर्म अ एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम and which may grow and spread over several fields. During unfavorable conditions, the plasmodium differentiates and form the fruiting bodies or the bearing spores at their tips. Fruiting and the spores जो होते हैं इनके, उनकी true wall होती है. So in second B में you can see that is known as the paramecium. जो paramecium है इनकी बॉडी जो आउटर साइड है उसके ऊपर cilia, that black is known as the cilia. और इनको हम सिलिएटेड प्रोटोजोन भी बोलते हैं। व्हाट आर प्रोटोजोन्स? प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स इट्स क्लियर विद यू, इज लिव एज ए प्रीडेटर और पैरासाइट्स। ठीक है, जो एज ए प्रीडेटर भी ये हो सकते हैं, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, और देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। एम्फीबॉइड अमीबा से रिलेटेड है। दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉस सॉइल। They move and capture their prey by putting their pseudopodia. ठीक है, pseudopodia को हम pseudopodia में P is silent, false feed इसको भी बोलते हैं। जैसे कि अमीबा में आपने देखा होगा, अमीबा में and marine forms have silica shells on their surface. Some of them is the Entamoebas parasite. Example क्या है इसकी? Entamoeba. And flagellate protozoans क्या होंगे? Bit obvious that इनके movement के लिए कौन सी पंचेस होएगी? Flagella. और मेम्ब्रेन ऑफ दिस ग्रुप पर इधर फ्री लिविंग और पैरासिटिक होंगे। एंड दीज पैरासिटिक फॉर्म्स कॉफ डिजीजेज सच एज द स्लीपिंग सिकनेस, इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोडियम। जो है ट्रिप्नोसोमा जो है, ट्रिप्नोसोमा मोस्टली जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, दैट इज अंडर द फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। सिलिएटेड प्रोटोजोन जो अभी मैंने आपको दिखाया, पैरामेशियम उसकी एग्जांपल है। सिलिया सिलियर भी देखा है। दीज आर एक्वेटिक actively moving organism because of the presence of thousands of cilia. Cilia hair-like appendages on the whole surface of the body, and they have a cavity that open to the outside of the cell wall. The coordinated movement of row of cilia causes the water laden with food to be steered into the gut. So this is paramecium. Then last one is the sporozoans. Sporozoans होते हैं, उनकी एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है मलेरियल पैरासाइट होता है, आपको पता है, जो एनाफिस मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो के गट से जो है इसमें मल्टीप्लाई करता है, ह्यूमन ब्लड में मल्टीप्लाई करता है, उनको हम बोलते हैं स्पोरोजोन्स। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स that have an infectious spores like stages in their life cycle. The most notorious is the plasmodium.
that is malarial parasites, a disease which has a effect on the human population. So this is the second kingdom, that is the what name of that kingdom is, second is the this is प्रोटिस्टा। और अगर मनीरा के अंदर क्या थे, प्रोकैरियोट्स थे, तो प्रोटिस्टा के अंदर क्या है, यूकैरियोट। ठीक है, और यूकैरियोट कौन से, वो भी सिंगल सेल्ड। इसके अंदर हमने सब हेडिंग क्या किया है, इसके अंदर आता है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं, मोस्टली डायटॉम्स। डायटॉम्स क्या बनाते हैं, डायटमस अर्थ बनाते हैं, जिसकी कि ह्यूमन फील्ड में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं क्राइसोफाइट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स जो है उनकी एग्जांपल क्या है, रेड टाइड्स, जिनकी वजह से होती हैं, जो डिफरेंट पिगमेंट्स की होती हैं, और मोस्टली मरीन सी वाटर में आप इनको देख सकते हो। तो ये जो रेड सी होता है, जो रेड टाइड्स होती हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डाइनोफ्लैजिलेट्स। यूग्लिना, यूग्लिनोइड्स हैं, उसकी एग्जांपल है यूग्लिना। यूग्लिना जो है मोस्टली स्टैग्नेंट वाटर, जो ठहरा हुआ पानी, फ्रेश वाटर है, उसमें होता है। और ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और नॉन फोटोसिंथेटिक, मतलब हेटेरोट्रॉप्स भी हो सकते हैं और ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं। स्लाइम मोल्ड्स जो है वो सेप्रोफिटिक ही होते हैं, और जो इसकी एग्जांपल है, ये जो प्लाज्मोडियम जो है इसकी एग्जांपल है, जो कि फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस करते हैं और स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। और देन इज लास्ट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है इनको हम दे रिजेंबल विद एनिमल्स, और मोस्टली क्या है, हेटेरोट्रॉप्स ही हैं। ये फर्दर सब टाइप्स हैं इनके, एम्फीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, सिलिएटेड प्रोटोजोन एंड स्पोरोजोन। जो एम्फीबॉइड प्रोटोजोन्स हैं उनकी एग्जांपल क्या थी, एंटमबीबा, हिस्टोलिटिका जो होता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है ट्राइपोसोमा गोंडाई, जिससे स्लीपिंग सिकनेस होती है। सिलिएटेड प्रोटोजोन में पैरामीशियम है, और स्पोरोजोन में क्या होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। सो दिस इज ऑल अबाउट द किंगडम ऑफ which kingdom, protista। ठीक है, मनीरा एंड प्रोटिस्टा। सो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर we have covered the different types of the kingdom protista, and the difference of eukaryotes and the prokaryotes, main difference of eukaryotes and the prokaryotes. So anything is not clear with you, please feel free to call me up or on my WhatsApp number. Thank you.